Okay. Now next chapter is a phase rule. Next chapter is a phase rule. Actually this phase rule was proposed by Dr. Gibbs. Okay, J. Willard Gibbs. There is one scientist known as J. Willard Gibbs. He was proposed the phase rule. Okay, so he studied the relationship between temperature, then pressure, then concentration of material and its phase. Okay, and he formulated one rule known as a phase rule. Okay, that is known as a Gibbs phase rule. It state that the rule state that F plus P is equal to C plus 2. मतलब F is equal to, F is nothing but the degree of freedom. Okay, P is nothing but the number of phases, C is nothing but the components. Okay, so by rearranging this equation you will get F is equal to C minus P plus 2. Okay, एक ऐसा रूल इक्वेशन बुक्स में दिया है, F is equal to C minus P plus 2. ठीक है. Now it's a relationship between, it's a relationship for determination of a least number of intensive variable, that is independent variables that do not depends on the volume size of the phase. Okay, now F is nothing but the number of degree of freedom of the system, C is number of component and P is number of phases. ये इतना important नहीं है phase rule, but still I want to take it. ठीक है, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन. So now system, मान लीजिए कि आपका एक सिस्टम है, एक ये सिर्फ गैस है, आपका सिर्फ गैस है या फिर आपका सिर्फ लिक्विड है या फिर आपका सिर्फ सॉलिड. सो सिस्टम लाइक ओनली गैस और ओनली लिक्विड और ओनली सॉलिड. सो नंबर ऑफ फेजेस इन सच काइंड ऑफ सिस्टम विल बी, फेज तो उसमें एक ही रहेगा. ठीक है, सो फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. तो F इज इक्वल टू C कितना है, कंपोनेंट कितना है, एक ही है. ठीक है, ये फेजेस कितना है, तो उतना क्या होगा आपका, कितना होगा आपका 1 माइनस 1. ये देखो यहाँ पे फेज सिस्टम कितना है, फेज सिस्टम एक ही है, गैस मतलब गैस फेज, लिक्विड मतलब लिक्विड फेज, सॉलिड मतलब सॉलिड फेज, एक ही फेज है. तो 1 कंपोनेंट भी कितना है, कंपोनेंट देखो अगर आपने सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए कि आपका फिनॉल सॉल्यूशन लिया है 10% फिनॉल सॉल्यूशन, तो उसमें कंपोनेंट कितना हो गया, 2 हो गया, कि फिनॉल भी है और वाटर भी है. 10% फिनॉल सॉल्यूशन मतलब क्या, कि 10% मतलब 10% फिनॉल है, बाकी का 90 क्या है, वाटर है. मतलब वहाँ पे कंपोनेंट कितने हो गए, 2. लेकिन अगर आपने गैस लिया या फिर लिक्विड लिया, या लिक्विड मतलब मान लीजिए एग्जांपल वाटर लिया, वाटर में कंपोनेंट कितना है, वाटर का क्या है कंपोनेंट, H2O. वाटर में कंपोनेंट वही है, अगर उसका वाटर वेपर होगा तो उसमें भी वही कंपोनेंट रहेगा, अगर आइस होगा तो उसमें भी वही कंपोनेंट रहेगा. सो फेज इज 1, कंपोनेंट इज ऑल्सो 1. सो 1 माइनस 1. ठीक है, F इज इक्वल टू कंपोनेंट कितना है 1, फेज कितना है 1, 1 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 2. मतलब F is equal to degree of freedom is equal to 2. So if it is 2, the system is known as a bivariant. Okay. Now in case of gas liquid, आप दूसरा पेज देखो, गैस लिक्विड, यहाँ पे कितना पेजेस है, 2 पेजेस है, गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड और गैस सॉलिड. मतलब यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, 2. पेजेस भी कितना है, 2. ठीक है, सो F is equal to फार्मूला का है, F is equal to C minus P plus 2. यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने, 2. सो मान लीजिए कि ये सब वाटर का ये, कि वाटर के वेपर है और वाटर का लिक्विड है, वाटर का लिक्विड है और वाटर का आइस है, और वाटर का वेपर है, वाटर का आइस है. तो उसमें कंपोनेंट क्या होगा, एक ही होगा. ठीक है, सो कंपोनेंट इज 1, नंबर ऑफ पेजेस आर 2. सो 1 minus 2 plus 2 is equal to 1. So the system is known as a univariant. When degree of freedom is 1, it is known as univariant. Now gas, liquid, solid. Take a 3 phase. Okay, in this case phases are 3. Okay, so C minus P plus 2. So component कितना है, अगेन एक ही है, वाटर. आप एक ही एग्जांपल ले लो वाटर का. ठीक है, phases कितना है, 3. So 1 minus 3 plus 2 0. So system is a invariant. Okay, so this was proposed by J. Willard Gibbs, known as a Gibbs phase rule. वाटर का अगर देंगे तो phase diagram of water. So we'll see the phase diagram of water. So here you have pressure on the y-axis and here you have temperature on the x-axis. Okay, you start heating water. Yeah, now okay, so below the 0 degrees Celsius you have this phase is nothing but the solid. Okay, after that this phase is liquid, and after that this phase is a gaseous phase. Okay, the temperature 0.0098 degrees Celsius and the pressure 4.5 torr. Or just remember temperature 0.0098 degrees Celsius and pressure is
4.5 mm of Hg. The point at which there is a equilibrium, the point at which there is a equilibrium of solid, liquid and gases. Okay, so what the point or the temperature at which, temperature and pressure at which all the phases of water, that is solid, liquid and gases, they occurs in a equilibrium. Okay, that point is known as a triple point of water. Okay, now at the triple point of water, all these three phases, solid, liquid and gaseous phase, they are present in the equilibrium. Okay, मतलब अगर उसमें टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसेस का डायरेक्टली सॉलिड में, गैसेस का डायरेक्टली सॉलिड हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का गैसेस हो जाएगा. मतलब ये पॉइंट पे जस्ट माइन्यूट चेंज करके आप एक फेज को दूसरे फेज में लेके आ सकते हो. मतलब यू कैन कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट एट द ट्रिपल पॉइंट. ओके, you can convert liquid into gases or liquid into solid at the triple point. Okay, so conversion of solid into liquid is known as a melting, and conversion of liquid into solid is known as a freezing. Okay, now conversion of a liquid into gases is known as a vaporization, and conversion of gases into liquid is known as a condensation. Okay, now conversion of gases into solid is known as a deposition, and conversion of solid into gases is known as a sublimation. ठीक है, ये आना चाहिए. Now this is a phase diagram water. Okay, so just remember the critical just remember the triple point of water. It is at a triple point of water is at a 0.0098 degrees Celsius, and pressure is nothing but the 4.58, and at the triple point of water all the three phases, solid, liquid and vapor, they are in a equilibrium. मतलब यहाँ ये टेम्परेचर पे और ये प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम में होंगे तीनों. ठीक है, थोड़ा भी चेंजेस करके, मतलब प्रेशर का चेंजेस या फिर टेम्परेचर का चेंजेस करके या फिर दोनों का चेंज करके आप सॉलिड का डायरेक्टली वेपर बना सकते हो, वेपर का डायरेक्टली आप सॉलिड बना सकते हो, सॉलिड का लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड का ये बना सकते हो, वेपर बना सकते हो, ऐसा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. सो each and everything is not important from this, so that's why I'm just taking the important portion. Okay, so just remember the phase diagram and phase diagram of water, that is known as single component system. ठीक है, water is nothing but the single component system. मतलब यहाँ पे देखो सॉलिड में क्या होगा, आइस होगा, आइस का फॉर्मूला क्या है H2O, लिक्विड मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या है H2O. सो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, नंबर ऑफ फेजेस आर 3 बट कंपोनेंट इज 1, सो इट इज अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, दैट इज अ वाटर फेज डायग्राम ऑफ वाटर. ये याद रखो. ये क्रिटिकल पॉइंट जो है, द पॉइंट और टेम्परेचर, the temperature and pressure at which there is a, so next one is also there is a, so triple point of water, temperature and pressure at which solid, liquid and gaseous state they can exist in a equilibrium. So that is nothing but the triple point of water, and it is nothing but the temperature is 0.098 degrees Celsius, vapor pressure is 4.58 mm of Hg, और torr में अगर बोलना है तो 4.5 torr. Now this is a one component system. Now there are two component system also. For example, phenol water system. Phenol water system. In case of phenol water system, there is a critical solution temperature, or it is known as a upper consolidate temperature. That is the maximum temperature at which two phase region exist. Okay, that is nothing but the 66.8 degrees Celsius temperature. I will show you. You can see in this diagram. This is a phase diagram of phenol. Okay. Now आप phenol water system का diagram जो है, आप बोलेंगे ये क्या है, पढ़ा रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आया. तो क्या है? It is nothing but the relationship between temperature, pressure and concentration of solution to the phase. Okay, ये तीनों का रिलेशन फेज के साथ में क्या है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों का रिलेशन फेज के साथ में क्या है. मतलब अगर ये तीनों एक प्रॉपर पॉइंट पे आएंगे तो एक फेज रहेगा या फिर दो फेज रहेगा. मतलब फेज मतलब समझ में आ गया आपको, वाटर, आइस ये जैसा फेज, डिफरेंट फेज, स्टेट ऑफ माइंड. अभी फिनल वाटर सिस्टम में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच देयर इज अ हाईएस्ट होमोजेनिसिटी. सो एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन नोन एज अ critical solution temperature or upper consolidate temperature, the temperature at which your phenol and water they are completely miscible. Okay, phenol and water they are completely miscible at a one point. You can see in the, that is the point is nothing but the B, and that is known as a critical solution temperature or upper consolidate temperature, that is a 66.8 degrees Celsius. And at this temperature
water and phenol are homogeneous. They will form a homogeneous or one phase system. Okay, so it is a one phase system. But below this temperature, okay, below this temperature there is a two phase system. ठीक है, मतलब they are not completely miscible. यहाँ पे देखो आप ये जो कर्व के अंदर देखो two phase liquid लिखा है, not a single phase, they are a two phase, they are not completely miscible. But beyond the temperature 66.8 degrees Celsius, that is a critical solution temperature or upper consolidate temperature, will get a homogeneous phase. Okay, now what is the application? एप्लीकेशन क्या है इसका, ये सब क्यों पढ़ रहे? इसका एप्लीकेशन होता है फार्मा फील्ड में. अभी देखो आपको फिनॉल का सॉल्यूशन बनाना है, अगर फिनॉल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, फिनॉल का डिफरेंट यूज होता है, क्रिसोल एज अ जर्मिसाइड यूज होता है, तो उसका सोलिबिलिटी उसका फॉर्मुलेशन बनाते समय आपको फेज डायग्राम का नॉलेज होगा तो अच्छा ही रहेगा ना, मतलब कितना टेम्परेचर को हिट करना है, तो यू विल गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर. नाउ देयर इज अनदर system known as a triethylamine water system. Triethylamine water system. So in this system, जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम में क्या था, अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर था, टेम्परेचर above which there will be single phase and temperature below which there will be two different phase. मतलब यहाँ पे वाटर फिनॉल आपको अलग अलग दिखेगा. अगर टेम्परेचर 66.68 गया तो उसके बाद में वो मिक्स हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा आपको, दैट इज अ सिंगल फेज. ओके, तो टेम्परेचर एट विच देयर इज a homogeneous phase known as a critical solution temperature और upper consolidate temperature. और इसके अबव क्या होगा, उसके अबव सिंगल फेज मिलेगा आपको, उसके नीचे डबल फेज मिलेगा. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर सिस्टम नोन एज ट्राइथैलामाइन वाटर सिस्टम, उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है. सो हियर यू विल गेट अ लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर. मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर होता है, मतलब उसकी वो टेम्परेचर के नीचे क्या होगा, ट्राइथैलामाइन एंड वाटर जो है दैट विल बी completely soluble or completely miscible or one phase. Okay, the temperature below which there is a complete miscibility of triethylamine and water, that is a lower consolidate temperature, and above this lower consolidate temperature there will be two phases. Okay, ये ज़्यादा important नहीं इसलिए मैं एकदम short में बोल रहा हूँ. Then there is another one more system known as a nicotine water system. So in case of nicotine water system there are both upper consolidate temperature as well as lower consolidate temperature. Okay, so upper consolidate temperature is 208 degrees Celsius and lower consolidate temperature is 60.8 degrees Celsius in case of nicotine water system. इसमें क्या होता है कि लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर जो है 60.8 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे क्या होगा कि निकोटीन एंड वाटर दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल, यू विल गेट अ वन फेज. ओके, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे तो अगेन आपको उनको सेपरेशन होगा, टू फेज दिखाई देंगे. कब तक, जब तक अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर नहीं आता. कितना है अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, 208 डिग्री सेल्सियस. तो 208 डिग्री सेल्सियस जैसे आता है उसके ऊपर वन फेज सिस्टम रहेगा, मतलब दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल, means they are completely miscible above 208 degrees Celsius and they are completely miscible below 60.8 degrees Celsius. So they are showing, this system is showing upper consolidate temperature as well as lower consolidate temperature. इतना क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर कि कौन सा सिस्टम आपको अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर देता है, दैट इज फिनल वाटर सिस्टम. कौन सा लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर देता है, that is nothing but the triethylamine. But कौन सा किसका फेज डायग्राम आपको both upper consolidate and lower consolidate temperature देता है, that is nothing but the nicotine water system. You can see two component system, in two component system water and phenol is the example. So the critical solution temperature or upper consolidate temperature is the maximum temperature at which two phase region exist, that is nothing but the 66.8 degrees Celsius. That is upper consolidate temperature is present in the phenol water system. Now nicotine in water system will show both upper consolidate temperature as well as lower consolidate temperature. That is lower consolidate temperature is 60.8 degrees Celsius and upper is 208 degrees Celsius. Okay, मतलब इसके ऊपर वन फेज रहेगा, इसके नीचे वन फेज रहेगा, मिसिबल रहेगा, लेकिन इनके दोनों के बीच में मिसिबल नहीं रहेगा. एंड वन मोर इज देयर, मैंने बोला था आपको, triethylamine water system. So that will show you a lower consolidate temperature, मतलब the temperature at which above which there is a two phases and below which there is a one phase. Okay, now we'll see next chapter known as a
dispersion, colloidal dispersion. It is very much important and you may expect the question from this chapter. So that's why we are taking this. Okay. After ये chapter होने के बाद सिर्फ आपके 2 chapter बचते हैं. That is nothing but the surface tension and interfacial phenomena and chemical kinetics. ये 2 chapter लूँगा मैं physical pharmacy के और बाद में physical pharmacy finish. मतलब आपने क्या लिया? Rheology, micromatrix, state of matter, phase rule, उसके बाद colloidal solution and then जो 2 रहेंगे वो इतने important है. बाकी का अगर पढ़ना है आपको तो okay. Now colloidal dispersion. So what is dispersion? Actually dispersion is a heterogeneous 2-phase system. ये 2 मतलब TO नहीं है, TW है. ये मैं करेक्ट करूँगा. Dispersion is a heterogeneous 2-phase system in which dispersed phase is distributed as a particles or the globules. Particles or globules throughout the another phase known as a dispersion medium. मतलब क्या है कि सस्पेंशन जैसे टाइप है, सस्पेंशन जैसा टाइप, लेकिन सस्पेंशन को बोलते हैं कोर्स डिस्पर्शन और ये कोलाइडल डिस्पर्शन है. कोलाइडल और कोर्स डिस्पर्शन में क्या है, सिर्फ पार्टिकल साइज का फर्क है. कि मान लीजिए कि आपका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या होता है, मतलब प्योर कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन, उसका पार्टिकल साइज होता है आपका लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो रहेगा उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, सो उसको दोनों के बीच में जो है उसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन. सो कोलाइडल सॉल्यूशन विल हैव पार्टिकल साइज रेंज इन द 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. इसके दोनों के बीच में रहेगा, उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. 0.5 माइक्रोमीटर के आगे गया तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन. अगर 1 नैनोमीटर के नीचे गया उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, सो डिस्पर्शन इज नथिंग बट द heterogeneous मतलब 2 अलग अलग. इट इज अ 2-phase system, dispersed particles and continuous phase, that is a dispersion medium. So dispersed, it is a heterogeneous 2-phase system in which dispersed phase distributed as a particles or globules throughout the another phase known as a dispersion medium. Okay, colloidal dispersion will have particle size range in between true solution and coarse dispersion. with true solution का particle size क्या होता है उसमें less than 1 nanometer. You cannot observe that by microscope. Okay, and coarse dispersion का क्या होता है, dispersion मतलब like suspension भी बोल सकते हो उसको. ठीक है, कोर्स डिस्पर्शन का क्या होता है 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है. तो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल डिस्पर्शन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, कोलाइडल डिस्पर्शन भी बोलते हैं और कोलाइडल सस्पेंशन भी बोलते हैं. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स. कोलाइडल डिस्पर्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशन, ऑल दीज आर द synonyms for that. Okay, but the name of chapter is a colloidal dispersion. Okay, so colloidal dispersion will have particle size range between 1 nanometer to 0.5 micrometer. Okay, मतलब particle size range between true solution and colloidal dispersion are having 3 types. They are having 3 types. First one is a Lyophobic colloid. First one is a Lyophobic colloid. First one is a Lyophobic colloids. Okay, Lyophobic means solvent loving. Okay, means solvent loving. So what is that? That is nothing but a thermodynamically true solution and are generally considered as a single phase system. Okay, so Lyophobic colloids, they are a thermodynamically true solution and they are considered as a one phase system. Okay, so Lyophobic colloidal solution, it is given by, for example, proteins, gums and जैसे आपका गम ट्राइकांत हो गया या फिर गम अकेशिया हो गया या फिर प्रोटीन का सॉल्यूशन हो गया, प्रोटीन का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, तो दैट्स को उसको बोलेंगे लायोफिलिक. ओके, लायोफिलिक कोलाइड. कोलाइड का टाइप कितना होता है, लायोफिलिक कोलाइड होता है, दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड, तीसरा होता है एम्फीफिलिक कोलाइड. मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलाइड. फर्स्ट वन इज अ लायोफिलिक, सेकंड वन इज अ लायोफोबिक, थर्ड वन इज अ एम्फीफिलिक. ओके, और झिटरोफिलिक. तो एम्फीफिलिक याद रखो, सोपा, ये इजी है वो. सो लायोफिलिक मतलब क्या, सो लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग. दे आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल, they can be called as true solutions and are generally single phase system. So the examples of compound forming Lyophilic colloid is nothing but the proteins, gums. Okay, they will form a Lyophilic colloid system.
इसका फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज लायोफोबिक कोलाइड। सो लायोफोबिक मींस सॉल्वेंट हीटिंग। ओके, सो इन दिस कोलाइड डिस्पर्स फेज इज इनसोल्युबल इन अ कंटिन्यूअस फेज। ओके, सो मतलब सस्पेंशन जो है दैट इज अ लायोफोबिक कोलाइड। आप अगर बोलेंगे कि सर मैंने अकेशिया का सॉल्यूशन बनाया और मैंने सस्पेंशन बनाया पैरासिटामोल का, तो जो सॉल्यूशन अकेशिया का बनाया आपने उसको बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट लविंग। बट लायोफोबिक मतलब क्या? लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हीटिंग, मतलब जो डिस्पर्स फेज है आपका दैट इज नॉट मिसिबल विद द कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, सो दैट इज अ लायोफोबिक। कि मान लीजिए आपके डिस्पर्शन बनाया अपना या फिर आपने सस्पेंशन बनाया पैरासिटामोल का, तो पैरासिटामोल का सॉल्युबिलिटी कम है तो उसको बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड। ओके, सो डिस्पर्स फेज इज इनसोल्युबल इन द कंटिन्यूअस फेजेस एंड देयर इज अ पुअर इंटरेक्शन बिटवीन टू फेजेस। मतलब जो कंटिन्यूअस फेज है आपका सॉल्वेंट और उसका जो पार्टिकल्स है उसमें इंटरेक्शन कम है, दैट्स व्हाई इट इज अ थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। So lyophobic collide is thermodynamically unstable. There is a less interaction between two phases and disperse phase insoluble in a continuous phase. For example, dispersion of gold. Gold के particles अगर dispersion water में करेंगे तो that will become a lyophobic collide. Iron hydroxide, that is also lyophobic collide. Then silver, arsenious sulfide, silver iodide. इनका डिस्पर्शन करेंगे वाटर में या फिर इनका सस्पेंशन करेंगे वाटर में, तो दैट इज अ लायोफोबिक कोलाइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन कोलाइड और एम्फीफिलिक कोलाइड। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलाइड, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक इज आल्सो नोन एज एसोसिएशन ऑफ कोलाइड और ज्यूटर आयन कोलाइड्स। ओके, ज्यूटर आयन का याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद रखो, एसोसिएशन कोलाइड और एम्फीफाइल। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ एम्फीफिलिक कोलाइड्स? इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल विल हैव लार्ज हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ठीक है, जो मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले ले सरफेक्टेंट का। सरफेक्टेंट में क्या होता है, सरफेक्टेंट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दोनों ये होता है ग्रुप्स होता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। उसका लार्ज होता है, बड़े साइज के ग्रुप्स होते हैं, तो मतलब ये लिपिड सोल्यूबल भी है, वाटर सोल्यूबल भी है, तो दैट्स व्हाई they are known as amphiphilic. So molecule containing large hydrophobic as well as hydrophilic groups, initially they will behave as a single entity, single molecule. After increasing the concentration, but at a certain concentration, they will form a aggregate. They will become aggregated, and the aggregate is nothing but aggregation is called as mycelium. कि जो सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए कि पॉलीसॉर्बेट 80 आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, पॉलीसॉर्बेट 80, इनिशियली क्या होगा, पॉलीसॉर्बेट 80 का डिसॉल्व हो जाएगा, इनिशियली उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, बाद में आपने और ऐड किया पॉलीसॉर्बेट 80 इसमें, तो क्या होगा कि पॉलीसॉर्बेट 80 उनका एसोसिएशन हो जाएगा, उनका एग्रीगेशन हो जाएगा, उसका माइसेली फॉर्म होगा। सो each micelle consists of 50 monomer of that surfactant, okay, and the concentration of surfactant at which there is a formation of micelle, okay, remember this is very important, the concentration of surfactant at which there is a formation of micelle is known as a critical micellar concentration, okay, CMC is known as a critical micellar concentration. Example, anionic surfactant like sodium lauryl sulfate, then cationic surfactant like cetyl trimethyl ammonium bromide, then non-ionic surfactant like polyethylene lauryl ether, ampholytic surfactant like dimethyl ammonium propane sulfonate. So these type of surfactant will form a association of colloid और amphiphilic colloid. ठीक है, याद रखो कौन सा colloid क्या है, कौन फॉर्म करता है। लायोफिलिक कौन फॉर्म करेगा, जितने भी गम्स है, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, आपका अकेशिया गम, ट्रेगेकान, प्रोटीन का, ठीक है, सो दे विल फॉर्म अ लायोफिलिक कोलाइड। देन लायोफोबिक कोलाइड कौन करेगा, जो मेटल्स थे जैसे गोल्ड होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड, सिल्वर एंड आर्सेनियस सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड इन वाटर, सो दे विल फॉर्म अ लायोफोबिक कोलाइड। देन एसोसिएशन कोलाइड विल बी फॉर्म्ड बाय। नेक्स्ट वन, नाउ वी विल सी द पार्टिकल साइज and characteristics of different kind of dispersion, okay, so there are three kind of dispersion known as a molecular dispersion, then colloidal dispersion and coarse dispersion। माउस के ऊपर ध्यान दे दो आप, ठीक है,
माउस के ऊपर। मॉलिकुलर डिस्पर्शन एक होता है, कोलाइडल डिस्पर्शन एक होता है और कोर्स डिस्पर्शन एक होता है। 3 टाइप के डिस्पर्शन होते हैं। नाउ मॉलिकुलर डिस्पर्शन किसे बोलेंगे? सो इफ द disperse phase is having particle size less than 1 nanometer, so that is nothing but the molecular dispersion, or it is also known as the true solutions. True solutions है ना, उसमें क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगी कि यार ये मतलब इनमिसिबल है, ऐसा लगेगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन वो इनमिसिबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, 1 नैनोमीटर का लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होगा। सो molecular dispersion will have particle size range of less than 1 nanometer and they are invisible in the electron microscope. Okay, they are invisible in the electron microscope. And molecular dispersion or true solution, they can pass through ultra filters and they can pass through semi permeable membrane. मान लीजिए कि आपने एक solution बनाया ग्लूकोज solution, तो ग्लूकोज solution that can easily pass the semi permeable membrane. Okay, that can easily pass the semi permeable membrane. And they will undergo rapid diffusion, that is known as a molecular dispersion or true solutions. For example, oxygen molecules, ordinary ions like sodium chloride etc. in glucose, इसको बोलते हैं molecular dispersion. Now let's come to the colloidal dispersion. Colloidal dispersion क्या होता है? Okay, so it will have a particle size range in the 0.1 nanometer to 0.5 nanometer, 0.5 micrometer. मतलब colloidal dispersion they will lie between molecular dispersion, that is a true solution, and coarse dispersion. कि colloidal dispersion किसके बीच में होता है? ट्रू सॉल्यूशन के बीच में और कोर्स डिस्पर्शन के बीच में होता है। ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना है? लेस देन 1 नैनोमीटर और कोर्स का क्या है? 0.5 माइक्रोमीटर। तो कोलाइडल का क्या रहेगा? 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ये याद रखो, ये एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक GPAT 20 में आया। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन? Colloidal dispersion, so it can be detected under ultra microscope. You can see under ultra microscope the particle size of this, कि there is a particles which is dispersed in the medium. इसमें नहीं दिखेगा, molecular dispersion में नहीं दिखेगा, लेकिन colloidal dispersion में दिखेगा और इसमें ज़्यादा clear दिखेगा, ठीक है। So you can detect the particles are suspended in the dispersion medium by ultra microscope, electron microscope, but not by ordinary microscope. Now colloidal dispersion can pass through filter paper. मतलब आपने अगर मिक्सर लिया, फिल्टर पेपर है, तो ऊपर आपको कोर्स जो आपका फिल्ट्रेट है वो आएगा और ऊपर जो रेसिड्यू है वो निकल आएगा। लेकिन अगर कोलोइडल डिस्पर्शन का अगर आपने फिल्ट्रेशन किया तो उसको रेसिड्यू कुछ भी नहीं आएगा, मतलब उसमें पार्टिकल है, सस्पेंडेड है, लेकिन वो पास होंगे क्योंकि उसका साइज कम है, ठीक है। सो देयर विल बी पास थ्रू फिल्टर पेपर, डू नॉट पास थ्रू सेमी मेम्ब्रेन, ठीक है। सो कोलाइडल डिस्पर्शन दैट कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर बट इट कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास होता है, वहां से क्रॉस होता है, डिफ्यूजन होता है उसका, ठीक है, बट कोलाइडल डिस्पर्शन का नहीं होता, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं जाता कोलाइडल डिस्पर्शन, बट इट कैन डिफ्यूज्ड बट वेरी स्लोली, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन, कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन आप बोलेंगे सिल्वर सॉल्यूशन कोलाइडल का क्या करेंगे आप? सो कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड। अगर आपने सिल्वर का ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते आप, उसको कोलाइडल सिल्वर का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा यूजिंग कोलाइडल मिल एंड ऑल दैट, ठीक है। Then natural and synthetic polymers, cheese, butter, jelly, paint, milk, shaving cream. So these will form a colloidal dispersion. Colloidal dispersion will show Tyndall effect and Tyndall effect of light scattering. मतलब आपको जब देखेंगे आप ओपन आई से तो आपको लगेगा ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं डिस्पर्शन, मतलब सस्पेंशन नहीं है, लेकिन जब आप लाइट का स्कैटरिंग करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग होगा, मतलब टिंडल इफेक्ट मिलेगा वहां पे, तब आपको मालूम होगा नहीं यार ये सस्पेंशन है, मतलब ये लुक्स लाइक अ ट्रू सॉल्यूशन बट इट नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ डिस्पर्शन और सस्पेंशन नोन एज अ कोलाइडल डिस्पर्शन, ओके। साइज याद रखो 1 to 0.5 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। नाउ लेट्स कम टू द कोर्स डिस्पर्शन। सो कोर्स डिस्पर्शन और कोर्स सस्पेंशन, आप इसको सस्पेंशन भी बोल सकते हो, डिस्पर्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। So in this case now dispersed phase has a particle size of 0.5 micrometer, more than 0.5 micrometer,
so greater than 0.5 micron. So it can be visible under microscope and it will do not pass through normal filter paper, do not dialyze, then do not go through semi-permeable membrane and do not diffuse. मतलब डिफ्यूजन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन जाता है? सिर्फ मोलिकुलर डिस्पर्शन और ट्रू सॉल्यूशन. कोलोइडल डिस्पर्शन जो है दैट आल्सो इज नॉट एबल टू क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओनली मोलिकुलर डिस्पर्शन कैन क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये बुक में है चार्ट, लेकिन जो अभी ये ऊपर वाला पोर्शन था वो बुक में नहीं था, वो अभी मैंने निकाला है. ठीक है, तो याद रखो, इसको बार बार देखो. ये सम अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द कोलाइड चैप्टर. पेप्टाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ एग्रीगेट्स इन द टू पार्टिकल्स इन द कोलाइडल साइज. मतलब कोलाइडल डिस्पर्शन का साइज आपको मालूम है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. उसके साइज का अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस डोमिनेट कर जाता है. सो इफ देयर इज डोमिनेंस ऑफ इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस देयर विल बी एग्रीगेशन and there will be formation of aggregation. So to break that aggregate you have to use the process of peptidation. Peptidation is nothing but the addition of salt solution. Salt add करेंगे तो उसका aggregation कम हो जाएगा. ठीक है, that is a peptidation. आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं. Amphiphils means molecular ion which has affinity for both polar as well as non-polar solvents. Then critical micellar concentration, I have told you the concentration of surfactant at which there is a formation of micelle. Next important point is Kraft point. ठीक है, ये definition से important है उसका. Kraft point is the temperature at which solubility, not a stability. ये solubility होगा, ये stability होगा, लेकिन solubility है उसका. So Kraft point is nothing but the temperature at which solubility of surfactant is equal to critical micellar concentration and above sudden rise in the solubility result. Okay, मतलब क्या Kraft point क्या है? The temperature at which solubility of surfactant is equal to the critical micellar concentration. अगर आपने सडन अगर टेम्परेचर और इंक्रीज किया critical micellar concentration के above, तो उसमें solubility क्या होगा? बढ़ जाएगा. So temperature at which solubility of surfactant is equal to the CMC and above which there is a sudden rise in the solubility, that is nothing but the Kraft point. ये important है, इसके ऊपर क्वेश्चन. Electrodialysis, diffusion of ions of molecule and enhanced by applying the electrical potential across the membrane. Dialysis मतलब क्या होता है कि dialysis मतलब आपके कुछ कंपोनेंट आपको रिमूव करना है, कुछ कंपोनेंट रखना है. जैसे ब्लड का डायलिसिस होता है. ब्लड का डायलिसिस मतलब क्या कि अगर किसी का किडनी फेल हो गया, किडनी का काम क्या है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड से टॉक्सिक वेस्ट निकाल के वाटर सोल्यूबल करना और बाहर निकालना. तो किडनी एक्ट एज अ फिल्टर. ठीक है, अगर किडनी खराब हो गया तो ब्लड में जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट वो एक्सक्रीट नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे आपको डायलिसिस करना पड़ता है. डायलिसिस मतलब क्या? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट from the blood, that is dialysis. Now electrodialysis मतलब क्या कि by the application of electrical potential across the membrane, removal of certain ion, unrequired ion, so that is electrodialysis. अगर ये पूरा line to line पढ़ते पढ़ोगा ना. Types of colloid, there are two types of colloid mainly, Lyophobic colloid and Lyophobic colloid. Actually there are three types, Lyophobic, Lyophobic and amphiphilic, or association of colloid. But just we will see the difference between these two again. So Lyophilic colloids, they are stable towards the prolonged dialysis. Okay, and they will show weak Tyndall effect. They will act as a protective colloid. And Lyophilic colloid are easy to prepare due to difference in the affinity towards the solvent. जो Lyophilic colloid होता है वो stable होता है dialysis के दौरान, और it will have a weak Tyndall effect. It will act as a protective colloid. मतलब ये याद रखो कि लायोफिलिक मतलब प्रोटेक्टिव, लायोफोबिक मतलब नॉन प्रोटेक्टिव. और ये जो है लायोफिलिक इट विल फॉर्म स्पॉन्टेनियसली. मतलब देखो ना, आप अगर आपने अकेशिया पाउडर जो है, अकेशिया पाउडर और वाटर में डाला 10 ml बीकर में, तो ऑटोमेटिकली वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा. तो लायोफिलिक कोलाइड विल फॉर्म स्पॉन्टेनियसली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, बट लायोफोबिक कोलाइड दे आर नॉन स्टेबल, दे विल शो स्ट्रॉन्ग
strong Tyndall effect light scattering. Then they are known as a non-protective colloids, and they are difficult to prepare due to low affinity towards the solvent. मतलब इसके जो पार्टिकल्स है और सॉल्वेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन? सो लायोफिलिक कोलाइड दे आर फॉर्म्ड spontaneously and they are thermodynamically stable. For example, rigid chain of polymer held in a dry state increases the entropy. ये लाइन छोड़ो, ये आपको समझ में नहीं आएगा. Dispersion of macromolecules and protein. अगर प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, that is a lyophilic colloid. Now इसका viscosity क्या रहेगा? Lyophilic colloid का viscosity रहेगा उसका high. So there will be high viscosity. Dispersed particles are solvated and usually asymmetric. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट क्या होगा? इट विल बी अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे विल रेजिस्ट द चेंजेस. सो दे आर स्टेबल एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. बट इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सो दे विल कॉज ए सॉल्टिंग आउट, प्रेसिपिटेशन होगा उसका. ठीक है. लायोफिलिक कोलाइड का अगर उसमें अगर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे अपन तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देयर विल बी precipitation or there will be salting out phenomena. Then stability, lyophilic colloid controlled by charge and solution of particle. So stability of lyophilic colloid, it is controlled by charge and solution of particle. Lyophobic colloid, lyophobic में क्या होता है? It is not formed spontaneously and thermodynamically unstable. Particle remains in the dispersed phase due to electrical repulsion. Dispersion is formed by metals and inorganic crystals. Lyophobic colloids. ठीक है. ये ऑलरेडी वो आपको समझ में आएगा. Now it will have a low viscosity. Dispersed particles are solvated and usually symmetric. Then it is very sensitive to the electrolyte. अगर इसमें अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो उसका क्या होगा? एग्रीगेशन हो जाएगा, irreversible aggregation और irreversible sorting out. Then stability. It is controlled by charge on particle. Okay, just ये इतना याद रखो थोड़ा सा, बस बाकी कुछ नहीं. Now lyophilic colloid, they are formed spontaneously. For example, acacia tragacanth protein, they will form readily a dispersion in water to form a colloidal dispersion. Lyophobic colloid are prepared by condensation method, dispersion method. Okay, जो lyophobic colloids होते हैं वो easily नहीं बनते. ठीक है. तो उनके लिए मेथड ये. So they are prepared by condensation method and dispersion method. उसका क्लासिफिकेशन देख. Kinetic properties of colloids. So kinetic property क्या है? उसमें Brownian motion होगा, diffusion होगा, sedimentation होगा, osmotic pressure होगा. Then optical property भी होता है उनका, जैसे light scattering वगैरह. ये डिटेल में अगर बुक में पढ़ना है तो पढ़ो वरना छोड़ दो. Kinetic property कौन सा है? Brownian motion, diffusion कैसे होगा, अभी sedimentation कैसे होगा. अभी जहाँ पे sedimentation आ गया वहाँ पे Stokes law आएगा. ठीक है. स्टोक्स लॉ आएगा. डिफ्यूजन पे क्या होगा? फिक्स लॉ आएगा, फिक्स लॉ आएगा. ठीक है. ऐसा एक मतलब एक कोरिलेट, ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स, यहाँ पे आ जाएगा वो. स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड रिजल्ट, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स. इंस्टेबिलिटी क्यों होता है? इंस्टेबिलिटी क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. एंड व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस? डायपोल इंटरेक्शन. Then repulsive forces are there. So stability of colloid is maintained by two kind of forces: attractive forces and repulsive forces. Okay. So attractive forces are nothing but the dipole interaction, and repulsive forces are the electrical repulsive forces because of overlap of diffuse part of electrical double layer. इतना याद रखो कि स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस. ठीक है. स्टेबिलिटी मतलब क्या? एसोसिएशन, मतलब उनका एक में के साथ फ्लॉबुल्स नहीं फॉर्म करना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए. दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी. स्टेबल सस्पेंशन रहना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, उनका एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए. नाउ देयर इज वन थ्योरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. नाउ मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स. ओके. लायोफिलिक तो ऑटोमेटिकली बन जाता है. लायोफोबिक में क्या आता है? देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स. Dispersion method is there, condensation method is there. Dispersion method, condensation method. So in case of dispersion method, there are further three type. Mechanical dispersion, इसमें colloidal meal यूज करते हैं. Mechanical dispersion में colloidal meal यूज करते हैं. Then electro dispersion and then peptidation. Peptidation मतलब इसमें क्या है? Salt ऐड करते हैं aggregation. ठीक है.
इसमें एग्रीगेशन जब होता है तो उसमें पहले एग्रीगेशन करते हैं और बाद में उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या होता है, सॉल्टिंग आउट फिनोमेनन होता है और उसमें डिस्पर्शन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में क्या आता है, एक्सेसिव कूलिंग, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन याद रखो सिर्फ, बाकी अगर पढ़ना है तो डिटेल में आप बुक में से पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखा तो भी चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड तो स्टेबल रहता है, ठीक है, उनका स्टेबिलिटी अच्छा होता है। लायोफोबिक कोलाइड का स्टेबिलिटी कम होता है। सो फॉर दैट देयर इज वन थ्योरी नोन एज अ DLVO थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जीपीएट में 1-2 बार। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जीपीएट में, ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार आया था आई थिंक। तो इसको आपको प्रॉपर्ली समझ लेना चाहिए। सो इट इज बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस दैट एक्सप्रेस द एग्रीगेटिव इंस्टेबिलिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स। मान लीजिए कि आपके पास सस्पेंशन है या फिर डिस्पर्शन है, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, तो उसका स्टेबिलिटी कौन डिटरमाइन करता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। मान लीजिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गए तो क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो इफ देयर इज अ इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, then there will be aggregation of that particles and that will leads to instability of lyophobic colloid. Okay, so there should be a optimum attractive forces and optimum repulsive forces. This theory was proposed by the scientist known as Darjaguin, then Landau, then Verwey and Overbeck. So that's why initial letters DLVO theory for stability of lyophobic colloids. They determine the quantitative approach to the stability of lyophobic colloids, and that is nothing but the DLVO theory. Okay, less interparticular distance, ये theory उन्होंने डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में। तो उस theory में क्या है, it is a curve of total potential energy, कितना है वो डिस्पर्शन का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है उसका डायग्राम रहता है। तो वो डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस पे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द नेगेटिव साइड एंड रिपल्सिव फोर्सेस ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, यहाँ पे जीरो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन सी हियर इज अ प्राइमरी मैक्सिमम, हियर इज अ प्राइमरी मिनिमम, हियर इज अ सेकेंडरी मिनिमम। मतलब ये थ्योरी क्या बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, कितना डिस्टेंस होना चाहिए 2 पार्टिकल का, दोनों पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो सस्पेंडेड फॉर्म में रह सके। ठीक है, कि बहुत कम डिस्टेंस होगा उसका तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट एंड दे विल कॉज एग्रीगेशन। अगर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, और बहुत ही कम डिस्टेंस होगा तो क्या होगा। तो उसके रिलेटेड जो थ्योरी है उसको बोलते हैं DLVO थ्योरी। ओके, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड ठीक है, तो आप देखते हैं अपन DLVO थ्योरी। सो इफ देयर इज अ लेस इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस इन द डिस्पर्शन, so what will happen, attractive forces will take over the repulsive forces and there will be a deep primary minimum। जो primary minimum होगा वो देखा था मैंने यहाँ पे। if the interparticular distance is less then attractive forces will take over the repulsive forces and there will be primary minimum. Okay, there will be decrease in the potential energy. Okay, if the less interparticular distance is there, so attractive forces will dominate and will cause coagulation or irreversible aggregation of particle, that is a instability again. Now if intermediate distance is there, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, so intermediate interparticular distance, so there will be formation of double layer of repulsion between particles dominates and gives the primary maximum in the curve. If the primary maximum is larger than the thermal energy of particle, it will they will remain in the dispersed state resulting in a stable colloidal dispersion. ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोलता हूँ। 2 पार्टिकल के बीच में जो अंतर है वो अगर बहुत कम है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगा और कोएगुलेशन होगा या फिर एग्रीगेशन होगा और इंस्टेबिलिटी होगा। ठीक है, स्टेबल नहीं रहेगा। अगर दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिमम है या फिर इंटरमीडिएट है तो उसमें क्या होगा कि there will be formation of double layer, मतलब repulsion, there will be formation of double layer of repulsion between particle, okay, and particle dominates and gives a primary maximum.
मतलब ये इसमें क्या होगा, पार्टिकल विल बिहेव लाइक इंडिविजुअल एंटिटी, वो सेपरेट रहेंगे. इफ द प्राइमरी मैक्सिमम इज हायर देन थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स it will remain in the dispersed state, resulting in a stable colloidal solution. Height of maximum depends on the electrolyte concentration and zeta potential. zeta potential क्या होता है ये अपन जब surface tension interfacial phenomena देखेंगे तब आपको बोलूंगा. लेकिन इतना याद रखो कि अभी भी समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. height of maximum in the curve depends on the electrolyte and zeta potential. Zeta potential. Electrolyte addition of electrolyte will decrease the zeta potential and lower the primary maximum and deepens the secondary maximum. So increasing the tendency of particle to flocculate. Ionic surfactant also decrease the primary maximum. तो primary maximum जो है यहाँ पे, अभी इसमें क्या होगा कि इसमें interparticle distance बहुत कम है, इसमें क्या है, intermediate है, ठीक है, intermediate interparticle distance है. तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होगा पार्टिकल से, यहाँ पे ऑप्टिमम डिस्टेंस होने के कारण, ठीक है. अगर थर्मल एनर्जी जो है, अगर इसकी प्राइमरी मैक्सिमम का जो एनर्जी होता है वो अगर टोटल थर्मल एनर्जी जो है डिस्पर्शन का उससे ज़्यादा होगा तो पार्टिकल स्टेबल रहते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन. बाद में उसका सेकेंडरी मिनिमम आता है, ठीक है. अभी इफ देयर इज अ लार्ज इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस it will give rise to secondary minimum because of the repulsive forces decreases more rapidly with the distance as compared to attractive forces. If the secondary minimum is smaller than thermal energy of particles tends to repel each other and will not aggregate. However, the larger the secondary maximum result in the formation of floccules which can be easily redispersed by shaking. मतलब क्या, अगर particular distance कम है तो coagulation होगा, एग्रीगेशन होगा और इंस्टेबल होगा. इंटरमीडिएट ऑप्टिमम डिस्टेंस है तो क्या होगा, वहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है, मतलब डिस्पर्शन रहेगा. अगर लार्ज इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस है फिर भी इंस्टेबिलिटी होगा, ठीक है, ये इतना याद रखो. नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड. वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द लायोफोबिक कोलाइड. इतना याद रखो कि DLBO थ्योरी इज रिलेटेड विद द इंस्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स. लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में देखते हैं. दिस विल बी द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेशन एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये हमने देखा था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेशन लेयर ऑफ द वाटर. ये कैसा है, ये इसको समझना है तो डायग्राम ही देखना पड़ेगा आपको. तो आप बुक में डायग्राम देख के ही समझ सकते हो, मैं दिखाऊंगा बाद में. बट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will cause salting out phenomena. Addition of alcohol acetone can change the lyophilic colloid to lyophobic colloid. ये लाइन याद रखो. Addition of alcohol acetone can change lyophilic colloid into lyophobic colloid. ये लाइन याद रखो. Sulz-Hardy rule. Sulz-Hardy rule, ठीक है, एक रूल है Sulz-Hardy rule. SCHULZ. Sulz-Hardy rule, ठीक है. Addition of electrolyte will cause precipitation of or coagulation of colloidal dispersion and it will cause decrease in the zeta potential. Okay, so the effectiveness of electrolyte to decrease in the zeta potential is not only dependent on the concentration of electrolyte but also depend on the valence ion causing the precipitation. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रूल है Sulz-Hardy रूल क्या कहता है कि अगर लायोफिलिक कोलाइड है उसमें अगर आप सॉल्ट डालोगे तो क्या होगा, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा या फिर एग्रीगेशन हो जाएगा. ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डालेंगे तो वो एग्रीगेशन करने की पावर जो है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. एक तो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो आयंस है, मतलब Mg+ है ना, Cl-, वो जो आयंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. The coagulation power of electrolyte in the dispersion that depends on the concentration of your electrolyte and the valence of ion causing precipitation. Okay, Sulz-Hardy rule is related with the stability of lyophobic colloid. ये रूल किसका है, किसके रिलेटेड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड की. और क्या बोलता है ये रूल बोलता है कि
जब अपन लायोफिलिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें क्या होता है कि वो लायोफिलिक कोलाइड का इंस्टेबिलिटी होता है, सॉल्टिंग आउट होता है, मतलब एग्रीगेशन होता है या फिर फ्लॉकुलेशन होता है। मतलब जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे वो सस्पेंडेड नहीं रहते, वो उसका एग्रीगेशन बन जाता है, केक बन जाता है, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंगली क्या कहता है वो कि द प्रेसिपिटेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is not only dependent on the concentration but also it depends on the valence of ion causing the precipitation। मतलब कौन precipitation कर रहा है, एल्यूमिनियम Al3 माइनस कर रहा है या फिर Na प्लस कर रहा है, कौन कर रहा है। Now according to this rule, higher is the valency of ion, greater is the precipitating power of electrolyte। ये important है, ये रूल important है, एक बार पूछा था। जैसे एल्यूमिनियम हो गया Al3 प्लस is the more effective than magnesium Mg2 plus and then Na plus। मतलब सबसे ज्यादा पावर प्रेसिपिटेशन का किस में आएगा, एल्यूमिनियम में आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद सोडियम आएगा। मतलब अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप डालेंगे किसमें, लायोफिलिक कोलाइड में, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा कोलाइड का। तो मैग्नीशियम डालेंगे तो उससे जितना ये जल्दी प्रेसिपिटेशन करेगा एल्यूमिनियम, उससे कम करेगा कौन, मैग्नीशियम, उससे कम करेगा कौन, सोडियम। तो ये एक बार ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था जीपैट में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव हाईएस्ट प्रेसिपिटेटिंग पावर इन द लायोफिलिक कोलाइड, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सूज हार्डली रूल, ठीक है। इट इज रिलेटेड, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इसके रिलेटेड और ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हॉफमिस्टर लायोट्रोपिक सीरीज, हॉफमिस्टर लायोट्रोपिक सीरीज। Okay, so coagulation power of lyophilic colloids is the given under series according to इसमें क्या है, coagulation power of electrolyte in a lyophilic colloid is given under a series। According to this series, the ability of electrolyte to dislodge the solvent sheet from the particles, ठीक है। मतलब इसमें क्या, ये ऐसे ही रूल है इसकी तरह से। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेशन करते हैं कौन, ये आयंस। इसमें क्या होता है, ये सॉल्वेंट जो होता है वो डिसलॉज करते हैं, मतलब अल्टीमेटली वो प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसका कहना है कि आयोडीन सबसे ज्यादा क्या, आयोडीन सबसे कम क्या करेगा, आयोडीन सबसे कम इंस्टेबिलिटी करेगा। सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगा साइट्रेट में, उससे कम होगा टार्ट्रेट में, उससे कम सल्फेट में, उससे कम एसिटेट में, उससे कम क्लोराइड में, उससे कम ब्रोमाइड में, और सबसे कम होगा आयोडाइड में। मतलब आयोडाइड विल कॉज इंस्टेबिलिटी इन द लायोफिलिक कोलाइड लेस, ओके। सबसे ज्यादा करेगा साइट्रेट विल कॉज इंस्टेबिलिटी, हायर इंस्टेबिलिटी, सो इट विल कॉज लोअर इंस्टेबिलिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। साइट्रेट से कम करेगा टार्ट्रेट से कम सल्फेट, कम एसिटेट, कम क्लोराइड, कम ब्रोमाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्ड नंबर। इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। It indicates the measurement of protective ability of hydrophilic colloid और lyophilic colloid, ठीक है। लायोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, आप बोलेंगे ये सर क्या कंफ्यूजन है। लायोफिलिक मतलब उसमें सॉल्वेंट कौन सा है अपने को मालूम नहीं, उसमें वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मालूम नहीं है अपने को, इसलिए अपन लायोफिलिक बोलते हैं। और हाइड्रोफिलिक किसको बोलेंगे, हाइड्रो मतलब वाटर, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसका हाइड्रोफिलिक कोलाइड बोलेंगे। सो वाटर नंबर इंडिकेट्स द मेजरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड और पॉलीमर मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज इट, गोल्ड नंबर इज नथिंग बट द मिनिमम वेट इन mg of the protective colloid required to prevent the color change from red to violet in a 10 ml gold solution on addition of 1 ml 10% sodium। ये डेफिनेशन है उसका गोल्ड नंबर का, और एज इट इज डेफिनेशन 1-2 बार पूछा है। सो मिनिमम वेट इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड, किसका वेट, प्रोटेक्टिव कोलाइड का, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू वायलेट in the 10 ml gold solution on addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution, that is known as a gold number। ये important है। There is another point known as a Kraft point, temperature at which solubility of surfactant is equal to critical micellar concentration। ये एक बार पहले भी देखा है, Kraft point, ठीक है। temperature at which solubility of surfactant is equal to critical micellar concentration, CMC। Then there is another point known as a cloud point, the temperature above which
cloudiness only appears is known as a cloud point. अभी ये एक ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सोल्यूशन है वो क्लाउडी दिखेगा आपको. मतलब देखो आप वाटर कैसा है, क्लियर है, और मिल्क कैसा है, मिल्क क्लाउडी है. तो मान लीजिए आपके पास एक डिस्पर्शन है, इट इज अ क्लियर डिस्पर्शन, ठीक है. और अगर आपने उसको हीट किया, ठीक है, एक टाइम पे एक टेम्परेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद उसमें क्या होगा, क्लाउडीनेस आ जाएगा. उसको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट. टेम्परेचर above which there is a cloudiness of dispersion is nothing but the cloud point, and it is mostly shown by non-ionic surfactant. It is mostly shown by non-ionic surfactant. ये सब इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर का, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था. सो gold number of different protective colloids. Last slide and last. So here we have given the protective colloid, example of protective colloids and their gold numbers. Okay. So gelatin will have gold number in range of 0.005 to 0.01. Albumin will have gold number of 0.1. Acacia will have gold number of 1 to 0.2. Sodium oleate will have gold number of 1.5. Tragacanth will have gold number of 2. इसके बारे में, जिलेटिन के बारे में एक बार पूछा था, एक बार ट्राइकांत के बारे में पूछा था. तो ये गोल्ड नंबर आपको याद करना है. इतना याद आपको कि सबसे कम जो गोल्ड नंबर होता है उसका जिलेटिन का होता है, उसके बाद आता है अल्बुमिन, उसके बाद अकेशिया, उसके बाद सोडियम ओलिएट, और सबसे ज्यादा आपका होता है ट्राइकांत का. ट्राइकांत इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड विच इज हैविंग हाईएस्ट गोल्ड नंबर, ठीक है. 2 जिलेटिन का कम होता है, ये याद रखो. एंड दिस वाज द लास्ट स्लाइड. नेक्स्ट वन इज अ कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेस्ड ऑन द कोलाइडल डिलीवरी सिस्टम दिया है, उसका पार्टिकल साइज दिया है, ठीक है. उसका कौन किससे बनते, कैसे बनाते हैं वो डिलीवरी सिस्टम, उसका बेस क्या है वो बनाया है, वो दिया है, और एप्लीकेशन दिया है, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज अ मैक्रोस्फीयर और हाइड्रोजेल्स. इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मैक्रोस्फीयर और हाइड्रोजेल्स. It is based upon the colloidal drug delivery system, colloidal dispersion. कि drug delivery system which is based upon the colloidal dispersion. Colloidal dispersion का application क्या है, drug delivery system. तो first one is a macrosphere hydrogel. उसका particle size होता है 0.5 to 20 micrometer. So alginate, gelatin, chitosan, polymeric microsphere, synthetic biodegradable polymers, they are used to prepare the microspheres and hydrogels. Now these microsphere hydrogels, they are used in a sustained release formulation. Okay. Then therapeutic scaffold for cell delivery in the tissue engineering. Tissue engineering में भी कोई किसका डिलीवरी करना है ड्रग का inside the cell, तो उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज माइक्रो पार्टिकल्स. उसका रेंज होता है 0.2 to 5 माइक्रोमीटर. तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीलैक्टाइड, माइक्रोस्फीयर, ये सब पॉलीमर्स है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीस्टाइरीन वगैरह. सो दीज पॉलीमर्स आर यूज्ड टू मेक अ माइक्रो पार्टिकल्स. सो दे आर यूज्ड इन द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. देन नेक्स्ट वन इज इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शंस. Emulsion, micro emulsion, it will have a size range of 0.15 micron to 2 micrometer. OW emulsion, water in oil emulsion, lipid emulsion, oil in water emulsion, micro emulsion. Okay, control and targeted drug delivery system उसका application. The next one is the liposomes. Liposome will have a size of 32,000 nanometer. So phospholipids and polymer based bilayer vesicles. Liposome क्या है? Phospholipid and polymer based bilayer vesicles है. They are also used as a targeted delivery. Then myceli, जो अपनी myceli formation of aggregation of your surfactant देखा था. जैसे क्या होता है myceli में, क्या होता है कि surfactant का क्या जो होता है, surfactant का 2 हेड होता है, मतलब एक पोलर हेड होता है, मतलब लिपोफिलिक होता है एक और एक हाइड्रोफिलिक होता है. तो myceli मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक हेड्स विल कम टुगेदर तो फॉर्म ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर. और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसके बीच में क्या रहेगा, एम्प्टी स्पेस रहेगा, तो उसको बोलेंगे माइसेली. अभी जो एम्प्टी स्पेस है उसमें आप ड्रग मॉलिक्यूल डाल सकते हैं. दैट इज अ माइसेलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नेचुरल एंड सिंथेटिक सर्फैक्टेंट माइसेली, एंड दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी.
देन नेक्स्ट वन इज नैनो पार्टिकल्स. नेक्स्ट वन इज नैनो पार्टिकल्स का रेंज क्या होता है 2 to 100 नैनोमीटर. लिपिड पॉलीमर इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स आर देयर. अगेन दे आर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड इन्वेस्टिगेशनल डिवाइसेस. मतलब इसका डायग्नोस्टिक में यूज होता है नैनो पार्टिकल्स. नैनो क्रिस्टल्स उसका रेंज होता है 2 to 100 नैनोमीटर. सेम क्वांटम डॉट्स ये थोड़ा सा डायग्नोस्टिक और इमेजिंग के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए ये चार्ट, बट ठीक है ये मालूम होना चाहिए आपको. सो इट विल एंड योर टुडेज लेक्चर.